ऑडियो क्लियर है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग नेटवर्किंग डिवाइसेस को डिस्कस कर रहे थे, वेयर वी डिड व्हाट अबाउट हब। ओके, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्विच, आफ्टर दैट राउटर, आफ्टर दैट एक्सेस पॉइंट्स। ओके, आफ्टर दैट ब्रिज, एंड देन रिपीटर, PoE devices, etc, right? So already we have done what is switch, oh, sorry, hub. Now we are going to discuss switch. Okay, and स्विच क्या है वो चीज़ हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। So these are the switches. Okay, we can use these switches to connect multiple devices together. Okay, for example, this is Cisco switch, and yes, you can see this is the simple switch. कहाँ रह गए बाकी लोग? Okay, so anyone want to explain that what is switch? कोई बताना चाहता है कुछ इसके बारे में? So it's the intelligent device. Yes, it is an intelligence device. Okay, let me start. Switch connect or connects multiple devices. Okay, स्विच का मेन फंक्शन क्या होता है? स्विच मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, राइट? एंड इट इज मैं बहुत it is layer 2 device. Okay, means we can use switch on data link layer. Okay, and switch use MAC address to send and receive information, right? स्विच क्या करता है? मैक एड्रेस का इस्तेमाल करता है इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करने के लिए। तो ये स्विच कुछ इस तरीके से होता है। मैं यहाँ पर एक पीसी ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज पीसी। ओके, and we can connect multiple like PC with the help of switch. So for example, this is port 1. I can connect with this, and second port we can use to connect second device, and third port I can use for this one. तो स्विच की जो सीरीज होती है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसे होता है, ऊपर नीचे राइट, ऐसे करके। तो मैंने ये तीन डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल द आईपी एड्रेस ऑफ दिस डिवाइस इज 192.168, और फॉर एग्जांपल द आईपी एड्रेस इज 10.0.0.10, एंड द
MAC address is XYZ, for example, right? This is the detail, and the address of this device is 10.00.20, and MAC address is ABC. For example, the IP address is 10.00.30, and the MAC address is 123. Okay. For example, these are the details. Okay. And मैंने यहाँ पर क्या मेंशन किया, मैक एड्रेस, switch use MAC address to send and receive the data. So it has memory to the addresses, store the address, and switch has CAM table. Okay. And each store MAC details. मैक रिलेटेड जो भी डिटेल्स है एक कैम टेबल होता है. कैम स्टैंड फॉर कंटेंट एड्रेस मेमोरी, and with the help of this CAM tables which store details. Okay, and there is two types of protocol like ARP and RARP. And ARP RARP used to manage IP to MAC and MAC to IP. Okay, so these are the technical details. Okay, and also this device we can use for half duplex as a HDX and FDX. Okay, we can use as SDX and FDX, means half duplex and full duplex. Okay, and it provides secure communication, and yes, there is VLAN technology. Okay, so there is VLAN technology, and it is a centralized device. So these are the technical specification, the detail of बेसिक स्विच. ओके, तो ये हमारा स्विच का बेसिक इंफॉर्मेशन या अपडेट होता है. लेट मी एक्सप्लेन दीज ऑल थिंग्स इन डिटेल. ओके, so connect multiple devices means you can see with the help of this device we can connect PC1, PC2, PC3. For example, if there is 48 port, we can connect 48 devices with the help of this switch. Okay, so it connect multiple devices same as a hub, एंड इट ऑपरेट एट लेयर टू. ये लेयर टू डिवाइस है, फिजिकल सॉरी डेटा लिंक लेयर. एंड डेटा लिंक लेयर पर हमारा क्या होता है, मैक एड्रेस होता है, और यहाँ पर फ्रेम फॉर्मेट में डेटा हमारा ट्रेवल होता है. राइट, तो ये फ्रेम को सेंड और रिसीव करता है, मैक एड्रेस के बिहाफ पर डेटा को सेंड और रिसीव करता है. मतलब कि ये जो डिवाइस है एक इंटेलिजेंट डिवाइस है. ये क्या है, एक तरीके का इंटेलिजेंट डिवाइस है, बिकॉज इट यूज MAC address, media access control. Anyone know that what is MAC address? Yes, sir. Yes, Physical MAC. address of Yes, yes, physical address of NIC. yes. Physical address of NIC. जो भी हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या NIC कार्ड्स होता है उसका क्या होता है, एक फिजिकल एड्रेस होता है. ओके, सो हर एक कंप्यूटर का अपने क्या होता है, एक NIC कार्ड होता है, तो एक यूनिक मैक एड्रेस होता है, एक यूनिक मैक एड्रेस होगा. ओके, एक मिनट. किसी को कनेक्ट कराने करने में दिक्कत हो रही है, मैं कनेक्ट करा लूँ.
डीवीजी राम। डीवीजे करके कौन है, कनेक्ट हो गए? अभी नहीं। ओके, कनेक्टेड। ठीक है। तो ओके, हम लोग स्विच के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। स्विच हमारा क्या है, मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करता है। लेयर टू डिवाइस है। और मैक एड्रेस के बिहाफ पर ये डेटा को सेंड और रिसीव करता है। हर एक कंप्यूटर का क्या होता है, अपना खुद का मैक एड्रेस होता है, या हर एक नेटवर्किंग डिवाइसेस का अपना खुद का मैक एड्रेस होता है। और ये एक यूनिक एड्रेस होता है। राइट। ये किसी और डिवाइस का एड्रेस नहीं हो सकता। अगर इसका मैक एड्रेस XYZ है तो वर्ल्ड वाइड इसी का ये मैक एड्रेस रहेगा, किसी और का ये मैक एड्रेस नहीं हो सकता। इट्स अ यूनिक एड्रेस। ओके। तो स्विच बेसिकली क्या करता है, अपनी एक मेमोरी मेंटेन करता है, जिसको बोला जाता है कैम टेबल या कैम मेमोरी। ओके। कैम का फुल फॉर्म होता है कंटेंट एड्रेस मेमोरी। और स्विच इस कैम टेबल के अंदर क्या करता है, कैम के अंदर एक टेबल जनरेट करता है। ओके। अब उस टेबल में मान लो कि कुछ इस तरीके से ये टेबल बना लिया, और सब इस तरीके से मल्टीपल टेबल है। ओके। कुछ इस तरीके से इसने पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसे करके मल्टीपल पोर्ट नंबर वगैरह मेंशन किया। और पोर्ट 1 के सामने इसने इसका मैक एड्रेस मेंशन किया, XYZ। और पर्टिकुलर हमारा किस टाइप का मैक एड्रेस है, एक का स्टोर किया ABC पोर्ट 2 पर, और एक का स्टोर किया 1, 2, 3। ओके। इनके IP के बारे में भी ये स्टोर करके रखेगा। तो मान लिया कि इसने एक एड्रेस रखा 10.0.0.10, 20, 30 ऐसे करके इसके पास मैक एड्रेस की टेबल होती है। बट ये IP एड्रेस और मैक एड्रेस इन प्रोटोकॉल की हेल्प से मेंटेन कर लेता है। ओके। स्विच क्या करता है, एक ARP टेबल मेंटेन करता है, जिसमें IP से मैक एड्रेस और मैक एड्रेस से IP एड्रेस फाइंड होता है थ्रू ARP। ओके। अभी आप लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम पर एक कमांड ऑपरेट करो, जो लोग भी कंप्यूटर से ज्वाइन है। जस्ट आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर जाओ और लिखो ARP स्पेस -A। जैसे ही आप लिखोगे, आपके कंप्यूटर या आपके नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर हैं, जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, सभी का IP एड्रेस और मैक एड्रेस आ जाएगा। आप देख सकते हो। तो जो भी आपका स्विच है, जो भी आपका राउटर है, जिस डिवाइस से आप कनेक्टेड हो, और उसमें जितनी भी डिवाइसेस वायर्ड या वायरलेसली कनेक्टेड हैं, उन सभी का ARP टेबल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सभी को? तो ये क्या करता है, मैक एड्रेस के बिहाफ पर डेटा को सेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल 10.0.0.10 ने डेटा को सेंड किया 10.0.0.30 के लिए। तो यहाँ से जो भी पैकेट जनरेट होगा, इसके अंदर सोर्स इंफॉर्मेशन ये है और डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन ये रहेगा। ठीक है। पैकेट जाएगा हमारे इसके पास, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से मान लिया डिटेल मेंशन हुआ इस पैकेट के अंदर, सोर्स के बारे में प्लस डेस्टिनेशन के बारे में, जो भी IP है। यहाँ पर देखो, सोर्स 10.0.0.10 है, 10.0.0.30 है। तो सोर्स मान लिया 10.0.0.10 और 10.0.0.30, इनका मैक एड्रेस ARP की हेल्प से स्विच क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा। और फिर XYZ मैक एड्रेस सोर्स होगा, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हमारा 1, 2, 3 होगा। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यानी कि 1, 2, 3 के लिए ये पैकेट देखा जाएगा कि किस पोर्ट पर 1, 2, 3 मैक एड्रेस अवेलेबल है। तो पता चला कि ये पोर्ट नंबर 3 है, और इस पर ये मैक एड्रेस क्या है, अवेलेबल है। तो ये डेस्टिनेशन
पोर्ट इसको मानेगा और इस डेस्टिनेशन पोर्ट पर सेंड करेगा, और फाइनली इस आईपी पर वो डेटा आकर क्या होगा, फाइनली डेटा कहाँ रिसीव होगा, आईपी एड्रेस। मैक एड्रेस जस्ट अ कम्युनिकेशन मीडियम है। तो यहाँ पर डेटा हमारा आकर रिसीव होगा, और ये इसको एक्नॉलेज मैसेज भी उसी तरीके से सेंड करेगा। सो दिस इज द वे ऑफ वर्किंग, ओके, इन स्विच टेक्नोलॉजी। इस तरीके से हमारा स्विच क्या करता है, फंक्शन करता है, राइट। बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो हमारे स्विच के पोर्ट्स होते हैं वो FDX कंपनी इस तरीके से सेट करके देती है, फुल डुप्लेक्स, है ना। दो तरीके का डुप्लेक्स होता है, एक होता है फुल डुप्लेक्स और एक होता है हाफ डुप्लेक्स। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने स्विच को बाय डिफॉल्ट फुल डुप्लेक्स पर रख सकते हैं, बट कभी कभी जरूरत होती है कि ये जो पीसी है इसको हम हाफ डुप्लेक्स पर कर दें, है ना। क्योंकि हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा कि डेटा सेंड हो रहा है तो सेंड होगा, और रिसीव हो रहा है तो रिसीव होगा, वन टाइम, एट एज अ सिंगल प्रोसेस होगा, सेंडिंग या फिर रिसीविंग। जब तक एक कंप्लीट नहीं होगा दूसरा यहाँ पर प्रोसेस नहीं होगा, वन वे कम्युनिकेशन। साइमल्टेनियसली डेटा को सेंड और रिसीव नहीं किया जाएगा इन हाफ डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी, बट फुल डुप्लेक्स में एट अ टाइम डेटा सेंड और रिसीव दोनों होगा। क्लियर है सभी को? एक बार दोबारा बताना। क्या पूछना है? ये जो एक बार तुम मतलब जो अपना ये डेटा क्या कैसे ट्रांसफर होगा, दोबारा समझ नहीं आया आपके बीच में। स्विच क्या करता है, मैक एड्रेस के बिहाफ पर डेटा को सेंड और रिसीव करता है, राइट। लेयर जी। 2 डिवाइस है। तो जब भी PC1 डेटा सेंड करेगा, स्विच अपने टेबल से मैक एड्रेस को रिकॉग्नाइज करेगा कि XYZ का डिटेल है और किसको भेजना है, इस एड्रेस पर। तो इसका मैक एड्रेस क्या है, 123। तो अपनी टेबल से 123 को रिकॉग्नाइज करेगा और फिर इसको डेटा सेंड करेगा, राइट। और यहाँ पर हमारा हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी होता है। हाफ डुप्लेक्स मतलब एट ए टाइम डेटा सेंड या रिसीव होगा, और फुल डुप्लेक्स में सेंड रिसीव दोनों साइमल्टेनियसली किया जा सकता है। सिक्योर कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि जिस पीसी ने जिस पीसी को डेटा सेंड किया है उसी को डेटा जाएगा, किसी और को डेटा सेंड नहीं होगा, नहीं, ओके। ठीक है। तो हब के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो अनवांटेड ट्रैफिक, अनवांटेड कम्युनिकेशन, सिक्योर कम्युनिकेशन यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर क्या हो रही है, मेंटेन हो रही हैं, राइट। जी सर। एनी अदर क्वेरी? नो सर। राइट। सो नेक्स्ट डिवाइस वी कैन डिस्कस अबाउट सर राउटर। वीलेन का क्या है इसमें, वीलेन? वीलैन पूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है, CCNA में, नेक्स्ट मॉड्यूल में, ओके। वीलैन बेसिकली अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने के लिए होता है, एक स्विच को एक से ज्यादा स्विच की तरह काम कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, राइट। पूरा पढ़ाया जाएगा, वीलैन, वीलैन ट्रंकिंग, इंटर वीलैन, STP, PVST, RSTP, मल्टीपल टेक्नोलॉजी है, तब जाकर ये पूरी टेक्नोलॉजी समझ में आता है। ईथर चैनल, LACP, PHGP, मल्टीपल कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है स्विचिंग के अंदर। एंड दो तरीके के स्विच भी आपको पढ़ने को मिलेगा आगे। एक लेयर 2, हम लोग जो अभी पढ़े हैं वो क्या है, लेयर 2। ऐसे ही एक और स्विच आता है जो कि लेयर 3, यानी कि एज अ राउटर की तरह भी वो काम कर सकता है, ठीक है। तो एडवांस में वो भी आपको देखने को मिलेगा आगे। नेक्स्ट डिवाइस विच इज राउटर, ओके। लेट मी शेयर सम इमेजेस जो कि हमने अभी, हाँ 1 मिनट। एक मैन नेटवर्क का एग्जांपल मैं यहाँ पर, मैन नेटवर्क नहीं पढ़ा रहा हूँ, जस्ट एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज टोपोलॉजी, एंड लेट मी शेयर सम एग्जांपल ऑफ राउटर images. You can see these are the router, okay, these are the routers, okay. And these routers we can use for home Wi-Fi network and all, right। सभी के घरों में जो वाईफाई और ये सारे सेटअप हैं वहां पर ये इस्तेमाल किया जाता होगा। But if you are working as an industry level engineer, so you will see there is Cisco
लेबल राउटर, इस तरीके के राउटर्स आपको देखने को मिलते हैं, है ना, ये सब। हम्म तो ये कंपनी के अंदर इस्तेमाल होने वाले राउटर हैं, क्योंकि इन राउटर के थ्रू आप पूरी की पूरी राउटिंग फैसिलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। बट ये जो हमारे राउटर्स होते हैं नॉर्मल, ये राउटर्स हमारे घरों में लगे होते हैं, इंटरनेट चलाने के लिए लगे होते हैं। बट चाहे सिस्को राउटर हो या ये राउटर हो, इनका मेन पर्पस क्या होता है? डेटा डेटा पैकेट को रूट करना, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा पैकेट को रूट करना, रूट। राइट। जैसे अभी मैंने मान लिया कि किसी एक आईएसपी से, मे बी मैं जियो से, एयरटेल से, वोडाफोन से, या किसी भी XYZ सर्विस प्रोवाइडर से मैंने इंटरनेट कनेक्शन लिया। मैंने राउटर, जो भी हमारा ये राउटर है, जो कि नॉर्मल वाईफाई और इसके लिए राउटर होता है, आईएसपी वगैरह को हैंडल करने के लिए ऐसे भी राउटर्स आप लगा सकते हो। मल्टीपल राउटर एक कंपनी के अंदर लग सकते हैं। तो राउटर 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 ये सब, वाईफाई राउटर, नॉर्मल राउटर, दूसरी साइट को कनेक्ट करने के लिए राउटर, ऐसे कुछ इस्तेमाल हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया राउटर, और इस राउटर से मैंने कनेक्ट कर लिया, मान लिया स्विच, अपना ऑफिस का पूरा नेटवर्क, डेटा सेंटर, जो भी सारी चीज़ें जो भी कनेक्ट करना है वो आप कर सकते हो। मैंने स्विच कनेक्ट कर लिया, इस स्विच से मान लिया मैंने सारे कंप्यूटर्स को लैन केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया। ये राउटर हमारा वाईफाई राउटर है, तो मैंने वाईफाई के थ्रू अपने सारे स्मार्ट डिवाइसेस को कनेक्ट कर लिया, मे बी। और हमारा ये जो राउटर है, ये हमारे आईएसपी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, और हमारा आईएसपी इंटरनेट यानी कि वर्ल्ड वाइड इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। और आप लोग भी इंटरनेट के थ्रू जुड़े हो अपने अपने घरों से, अपने अपने आईएसपी के थ्रू, और इंटरनेट से जुड़े होने की वजह से हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी मैं अभी लिख रहा हूँ, जो भी दिखा रहा हूँ, वो सब कुछ आप देख पा रहे हो ड्यू टू राउटर। राउटर क्या कर रहा है? हमारी इंफॉर्मेशन को आपके नेटवर्क तक सेंड कर रहा है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम किसका होता है? हेलो। जी सर। राउटर का राउटर सर। का। ओके। सो बेसिकली दिस इज द राउटर। और अगर इन डिटेल हम लोग जाएं, तो हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बेसिकली राउटर कनेक्ट डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क, राइट। डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है। एंड राउटर यूज आईपी एड्रेस टू सेंड एंड रिसीव द डेटा। आईपी एड्रेस मीन्स, अगर मान लिया कि हमारा एक राउटर है, और ये किसी स्विच से कनेक्टेड है, हो सकता है इस स्विच से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हो, यूनिवर्सिटी का कैंपस है, मेन ऑफिस है, डेटा सेंटर, यहाँ पर एक डिवाइस नहीं होगी, यहाँ पर हजारों डिवाइसेस हो सकती हो। तो इसको कौन कनेक्ट करेगा? मल्टीपल स्विचेस लगाने पड़ेंगे, और ये सब है। तो ऐसे मल्टीपल पीसी कनेक्टेड हैं, सभी का अपना अपना आईपी एड्रेस होगा, इसका आईपी, इसका आईपी, सबका अलग अलग आईपी होगा। तो राउटर क्या करता है? इन सभी आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन करता है, राइट। ये दूसरे नेटवर्क, मतलब कि हमारे नेटवर्क में अगर मेरे राउटर का या मेरे सर्वर का जो भी आईपी एड्रेस है, अगर ये आईपी मैं आपको शेयर कर दूं, तो आप हमारे कंप्यूटर सिस्टम को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। क्लियर है? हम्म जैसे फॉर एग्जांपल, कोई एक कंप्यूटर है, जैसे मैं अपने सिस्टम पर आ जाता हूँ, सीएमडी ओपन करता हूँ, एंड लेट मी शो। मैंने लिखा यहाँ पर आईपी कॉन्फ़िग। आईपी कॉन्फ़िग लिखने के बाद मुझे यहाँ पर एक एड्रेस मिला 192.168.35.2। ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? जस्ट यहाँ से पिंग लिखूंगा 192.168.35.2, एंटर। तो ये रिप्लाई मुझे देखने को मिलेगा। यानी कि मैं आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन कर सकता हूँ थ्रू राउटर। मान लिया गूगल का क्या आईपी है, मुझे चेक करना हो, तो मैं एनएस लुकअप स्पेस गूगल, या सिंपल मैं यहाँ से पिंग कर सकता हूँ गूगल को, पिंग स्पेस google.com, क्योंकि गूगल भी एक आईपी एड्रेस पर चल रहा होगा, एक रिप्लाई यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, राइट। तो गूगल सर्वर कहीं और है, यूएसए में रखा होगा, इंडिया मुंबई में रखा होगा, या अलग अलग लोकेशन पर होगा, बट आई कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर सर्वर विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। ओके। So if we have our, you have
IP address of any target machine and that particular machine available on internet, so you can access that machine with the help of IP address. Okay, and router will help to get access with the help of IP address, right? राउटर क्या करता है? आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करता है। तो दुनिया भर में बहुत सारे जितने नेटवर्क हैं सभी के घरों में राउटर्स लगे होंगे, सभी के फोन में राउटर होता है, मतलब मॉडेम राउटर या वो फैसिलिटी होती है, तब जाकर आपका इंटरनेट और सारी चीजें चलती हैं। बिना राउटर मॉडेम के या उसकी फैसिलिटी के आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। ऐसा नहीं सिम लगा दिया इंटरनेट चलने लगता है। आपके डिवाइस के अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है, नेटवर्क आईसी लगा होता है, जो वो सारे फंक्शन को करता है। राइट? क्लियर है? Yes. तो ये सारी चीजें हैं। And in advance, router has facility to manage different types of function, like router maintain routing. Okay, so routing is a process to send and receive the data to different network. Okay, router provides secure communication. Secure communication. ओके, लाइक अभी हम लोग एक सिक्योर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जब तक मैं अपने आईडी क्रेडेंशियल किसी को नहीं दूंगा तब तक हमारे नेटवर्क के साथ या हमारे इस सर्वर के साथ कोई जुड़ नहीं सकता, इस मीटिंग रूम के साथ कोई जुड़ नहीं सकता। इसका एक वैलिड क्रेडेंशियल है, जब आप लोगे और उसके थ्रू जब लॉग इन करोगे तभी एक्सेस कर पाओगे, है ना? मतलब एक आईपी एड्रेस और ये सारी चीजें हमारे राउटर के थ्रू मैनेज हो रही हैं। ओके, सो सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। राउटर सपोर्ट वीपीएन लेवल टेक्नोलॉजी। वी कैन कॉन्फ़िगर वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, मींस एनोनिमस कम्युनिकेशन। वी कैन मेंटेन एनोनिमस कम्युनिकेशन। इट इज अ रिमोट प्रोटोकॉल, so we can manage VPN, we can manage NAT, we can manage proxy. Okay, we can manage WAN communication, we can manage other different types of ACL, we can manage we can filter network traffic, we can filter traffic, we can block port number, we can block protocols, we can block other stuffs or services with the help of router, right? Mhm. So basically router manage everything or multiples of things, okay, over a network. एक नेटवर्क में राउटर या एक कंपनी में या एक हमारे घर पे जो राउटर्स होता है, ये मैक एड्रेस को फिल्टर करना, आईपी एड्रेस को फिल्टर करना, पोर्ट को ब्लॉक करना, वेबसाइट को ब्लॉक करना, प्रोटोकॉल को ब्लॉक करना, मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स को ये क्या करता है? मेंटेन करता है, सिक्योर करता है, Maintain. ब्लॉक करता है। ओके, ये सारी चीजें। So if someone asks that what is router, so you can answer that router used to connect two different network together or more than two different networks. Okay, means main things of router is to provide routing facility. Connectivity. Yes, Okay. different network connectivity बोल दो, routing facility बोल दो, right? Secure communication. Okay, NAT, proxy, VPN, ACL, and we can establish geographical communication, okay, with the help of router. Router. If you want to route the packet from one network to another network, you can use router, we can use router, simple. Okay, समझ में आया सभी को? कोई डाउट, Yes. कोई क्वेश्चन किसी को? एनी क्वेश्चन? एक देखो, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं ये पॉइंट्स आपको समझ में आने चाहिए, तुरंत रट नहीं जाएगा, ये मुझे भी पता है। टॉपिक क्लियर होता जाएगा, बाद में आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखकर अपना रिवीजन कर सकते हो। हाँ, पूछिए विनोद। सर ये पूछ रहा हूँ जो इंडस्ट्री में जो राउटर है और हमारे जो डोमेस्टिक राउटर है, तो इसमें डिफरेंस क्या है और क्यों यूज किया जा रहा है सर वो सिस्को वाला राउटर? क्या हम देखो, इंडस्ट्री में राउटर का मेन फंक्शन समझ में आया पहले सभी लोगों को? जी मेन फंक्शन राउटर का एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा को पहुंचाना, ठीक है? बिल्कुल। अब अलग अलग टाइप के राउटर्स हैं, यहाँ पर हजारों टाइप्स के राउटर सीरीज आपको मिल जाएंगे। तो अगर मान लिया एक्स राउटर के बारे में आप देखोगे तो मान लिया कि उसमें राउटिंग है, उसमें नेट है, उसमें वीपीएन है, उसमें एसीएल नहीं अप्लाई कर सकते,
उसमें एक्स राउटिंग नहीं करवा सकते, है ना। किसी में कुछ कम फीचर होंगे, किसी में कुछ ज्यादा होंगे। तो जैसे जैसे नीड होती है, हमें हमें डेटा सेंटर के लिए राउटर चाहिए, तो उस लेवल के जो कैपेबल राउटर हैं वो आप लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अब एक एक लैपटॉप तो सभी लोगों ने लगभग खरीदा होगा, है ना। यस लैपटॉप सर। हटा दो, मोबाइल सब लोगों ने खरीदा होगा। हम्म। सभी लोगों के पास स्मार्टफोन होगा। अब आपने स्मार्टफोन पहले तो खरीदा, बाई किया, मतलब कि बाई बाद में किया, बट उससे पहले आपने रिक्वायरमेंट चेक किया कि भाई हमें क्यों स्मार्टफोन खरीदना है, बेसिक फोन क्यों नहीं खरीदना है, कीपैड वाला। समझ रहे हो आप। देखो, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया बहुत अच्छे से। आप जब आगे राउटिंग वगैरह पढ़ोगे तो और डिटेल में आपको आंसर मिल जाएगा। बट अभी मैं एक फंडामेंटल आंसर दे रहा हूँ, राइट। कि जैसे आपने एक फोन खरीदना है ना, लैपटॉप भी भूल जाओ, फोन सभी लोगों ने खरीदा होगा, तो मैं इसी पॉइंट से पूछ रहा हूँ कि फोन, आपने स्मार्टफोन क्यों खरीदा। स्मार्टफोन भी खरीदा तो फिर आपने 8 GB रैम क्यों खरीदा, 2 GB रैम वाला क्यों नहीं खरीदा, है ना। या 8 GB के बाद एक 12 GB का भी आता होगा, या 16 GB का भी आता होगा, वो क्यों नहीं खरीदा, है ना। शायद प्रोसेसर या एंड्रॉयड का वर्जन 10 भी आता होगा, 11 भी आता होगा, 13 भी आता होगा, 16 आता होगा। आपने 16 खरीदा, 10 क्यों नहीं खरीदा, 11 क्यों नहीं खरीदा। हम्म। हो सकता हो कि आपने एक स्मार्टफोन खरीदा होगा जिसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा हो, आपने 12 मेगापिक्सल वाला क्यों नहीं खरीदा। समझ रहे हो आप। हो सकता हो कि उसमें फ्लैश लाइट किसी में हो, किसी में फ्लैश लाइट ना हो, 2 मेगापिक्सल के साथ नॉर्मल कैमरा आता हो। छोटे छोटे 2-3 हजार के फोन नोकिया अभी भी बनाता है जिसमें नॉर्मल कैमरा आता है 2 मेगापिक्सल, और ये सब फोटो तुरंत खींचो ब्लर आती है। तो वो वाला क्यों नहीं खरीदा आपने, 48 मेगापिक्सल वाला क्यों खरीदा। आपने माइक्रो सेंसर पर कैमरा क्यों खरीदा। आपने एक गोरिल्ला ग्लास ग्लास प्रोटेक्शन, पता नहीं कौन कौन से ग्लास का, ये सब चीजें देखकर आप क्यों खरीदते हो सकता हो कि आपको इतनी रिक्वायरमेंट है, आप कहते हो बस एक बेसिक फोन दे दो 5,000 रुपए का। एक बंदा कहता है फोन मुझे चाहिए 50,000 रुपए का। एक बंदा कहता है कि मुझे फोन चाहिए 5 लाख रुपए का। गेटिंग माई पॉइंट। बट मेन यस फंक्शन क्या है इसका, टू सेंड एंड रिसीव कॉल मैसेज टेक्स्ट वॉट एवर, है ना। मैं आपको एक बार बाकी पूछूं। उसके अंदर जो एडिशनल फीचर हैं वो हमें अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। अगर हम डोमेस्टिक राउटर ले रहे हैं, पर्सनल घर के लिए ले रहे हैं, तो हमें सिस्को का 2-4 लाख का राउटर लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, राइट। हमारे घर पे नॉर्मल वाईफाई राउटर से 1,000 रुपए वाले से काम चल जाएगा। एक छोटा सा स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस मैनेज करना है तो वहां पर एक सिस्को का राउटर लगा सकते हो, वायरलेस राउटर, जो 40-50 हजार 1 लाख रुपए का हो। एक डेटा सेंटर मैनेज करना है तो वहां 1 CR का राउटर आप लगा सकते हो, क्योंकि उस लेवल की ट्रैफिक, उस लेवल की बैंडविड्थ, उस लेवल की स्पीड, फिल्टर, है ना, जो फीचर है, जो राउटिंग कैपेबिलिटी है, वो वही राउटर मैनेज कर सकता है। समझ रहे हो आप। जी। तो नीड एंड रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है कि किसी मॉडल को कहीं के लिए फिक्स किया गया है, राइट। या कोई पर्टिकुलर फोन किसी पर्सन के लिए ही बनाया गया है कि वो आइडेंटिटी आप दिखाओगे तभी खरीदोगे, नहीं। आप परचेज कर सकते हो, बट अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही हम यूज करते हैं, राइट। तो ऐसे इंडस्ट्री में भी अगर हमें छोटा नेटवर्क लगाना है तो हम शायद सिस्को के 50-60 हजार वाले राउटर से काम कर लें, सिस्को के 30-40 हजार वाले स्विच से काम कर लें। डेटा सेंटर मैनेज करना है, Tier 2 Tier 3 के नेटवर्किंग को मैनेज करना है, तो शायद हमें फिर करोड़ों करोड़ों के राउटर्स लगाने पड़े, है ना। ऐसे सीरीज होते हैं। आई शेयर द PDF फॉर राउटर सीरीज, ओके। जिसके हम्म। अंदर कैपेबिलिटी होगी कि ये राउटर ये कर सकता है, किसी में VPN सपोर्ट है, किसी में VPN सपोर्ट नहीं है, किसी में रिमोट एक्सेस VPN है, किसी में लाइक P2P टाइप का VPN है, किसी में किसी तरीके का सपोर्ट है। गेटिंग माई पॉइंट। समझ में आया विनोद। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन यही था, हाउ कैन डिसाइड कि भाई हाँ, किससे हम क्या। तो नीड के अकॉर्डिंग ये होता है। और आगे और एक्सपोजर आपको मिलेगा, मैं कुछ PDF और ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें ये गाइड रहेगा कि ये राउटर ये स्पीड प्रोवाइड कर रहा है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये अटैक कंट्रोल कर सकता है। कुछ जैसे नॉर्मल घर पे राउटर है, उसमें DDoS डॉस या फिर रैंसम अटैक ये सब का कंट्रोल नहीं होगा,
है ना, पर्टिकुलर साइट या सर्वर या किसी हेलो सर, टारगेट मेरा को एक ब्लॉक क्वेश्चन नहीं था। कर सकते। समझ रहे हो? बट कुछ ऐसे राउटर्स, या मान लिया कोई मेरी कंपनी है जहां पर मल्टीपल वेब सर्वर चल रहे हैं, उस पर मुझे डीडॉस डॉस का अटैक सिक्योर करना है, तो फिर हमें उस लेवल का राउटर चाहिए होगा जो शायद 4 लाख 5 लाख रुपए का आता हो। समझ रहे हो? तो फीचर एंड फैसिलिटी के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करते हैं। हाँ, किसी का क्वेश्चन था दूसरा, पूछिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारे L3 स्विचेस में भी तो राउटिंग प्रोटोकॉल होता है। किसमें? L3 स्विचेस में, हाँ, L3 L3। स्विच। हाँ तो हाँ। फिर हम राउटर की जगह L3 स्विच भी तो यूज कर सकते हैं। नहीं, राउटर की जगह नहीं यूज कर सकते। राउटर की तरह ही। एज अ राउटर राउटर एज उसको एज हाँ, एज अ राउटर यूज कर सकते हैं। हाँ, बट लिमिटेशन वहां पर होती है ना, राउटर नहीं यूज कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, एक, मतलब कि आपको इंडिया से यूएसए जाना है या दुबई जाना है। समझ रहे हो? समझना आप, है ना? दुबई जाना है, आपके पास, आप प्लेन से ही क्यों जाते हैं? है ना? आप शिप से भी जा सकते हो, समुद्र के रास्ते, है कि नहीं? आप अपनी 4 व्हीलर लेकर जा सकते हो। जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? जा यस सकते हो। यस। बट हम प्लेन से ही क्यों जाते हैं? क्योंकि टाइम से ही हो, जल्दी हो जाए। वो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, ज़्यादा सेफ होता है, सिक्योर होता है, टाइम सेविंग होता है ना? और हम इधर से जाएंगे, बहुत पैसा लगेगा, सिक्योर भी नहीं है ना? तमाम चीज़ें हैं। तो हमारे पास राउटर, L3 स्विच एज अ राउटर लेयर 3 के कुछ फंक्शंस के लिए बनाए गए हैं, है ना? यस। वो कि कुछ फंक्शंस के लिए बनाए गए हैं। देयर इज लिमिटेशन ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल, यू कैन नॉट कन्फिगर L3 स्विच एज अ L3 राउटर। देयर इज लिमिटेशन, राइट? लिमिटेशन ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स, कुछ रूट के लिमिटेशंस आ जाएंगे, कुछ प्रोटोकॉल्स की लिमिटेशन आ जाएगी। सो L3 स्विच यूज्ड टू हैंडल ओन नेटवर्क इन्वायरमेंट, राइट? ऐसा कुछ बोल सकते हो कि अपने नेटवर्क इन्वायरमेंट में वीलैन, इंटर वीलैन कम्युनिकेशन, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, या फिर मैं अभी एक टीयर बाई डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, एक्सेस लेयर और कोर लेयर के बारे में बताऊंगा, जहां पर आप इसके बारे में और एक्सपोजर लोगे, ठीक है? तो एज अ राउटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लिमिटेशंस आ जाएंगी यहाँ पर। एज अ राउटर ही अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो देर इज डेडिकेटेड राउटर टू हैंडल द ट्रैफिक फॉर वैन नेटवर्क। बट लेयर 3 स्विच वी कैन यूज विथ लिमिटेशन। अपने लोकल इन्वायरमेंट में लेयर 2 स्विचेज को मैनेज करने के लिए लेयर 3 स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। वो उतना कन्वीनियंट होता है, उस लेवल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है, लोकल इन्वायरमेंट में राउटिंग करवा देगा, अपनी साइट्स को कनेक्ट करवा देगा, बट नॉट एक्ट एज अ L3 राउटर। ओके। और भी लिमिटेशंस आती हैं, तो इसका एक स्विचिंग का चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो और डिटेल पढ़ोगे आप। बट आंसर यही रहना चाहिए आपका कि act as a L3 router or L3 device, but not we cannot configure L3 switch as a full L3 featured राउटर। router. ओके, फुल फीचर्ड राउटर नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि जो वही, कि 1 लाख वाला फोन हमने क्यों लिया जब हमारा 3 हजार वाले में भी कैमरा है? तो फिर 1 लाख वाला कैमरा क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी उस लेवल के लिए डिलीवर की गई है ना? उस लेवल की प्रोवाइड करेगी। और इस वाले कैमरे में वो नॉर्मल कुछ ऐसे लिए जो कि ज़्यादा यूजफुल शायद नहीं हो। कोई ऐसा कभी स्क्रीन रिकॉर्ड करना हो या कभी कुछ करना हो, किसी वीडियो को कैप्चर करना हो, कोई इंसिडेंट को कैप्चर करना हो, तो शायद आप दूर से कैप्चर ही ना कर पाओ, समझ में ही ना आए कि वो कौन था, है ना? बट लाख रुपए वाला फोन दूर से ही जूम करके, 10x जूम करके वो 5 किलोमीटर दूर से कैप्चर कर लेगा। गेटिंग माई पॉइंट? सर। तो हम राउटर को एज अ राउटर लेंगे, L3 को एज अ राउटर यूज कर सकते हैं, बट लिमिटेशन आ जाती है, देर आर मल्टीपल लिमिटेशन। ओके, जब आप राउटिंग और स्विचिंग को पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे और डिटेल में।
हाँ, और कोई क्वेश्चन? एक चीज मेरा, हेलो हम्म। सर, हम एक नेटवर्क में दो मॉडल के एक्सेस पॉइंट यूज कर सकते हैं? अब कुछ भी यूज कर सकते हो। नहीं, जैसे मैंने अपनी साइट पे यूज किया था, तो हाँ, उसमें ना मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि जो मेरे एक्सेस पॉइंट है ना, मल्टीपल टाइम पे मल्टीपल एपी ऑफलाइन शो रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। देखो, क्वेश्चन दो तरीके से है। अगर किसी एक लैन कंट्रोलर से या डब्ल्यू लैन से हमें मैनेज करना हो तो हम डिफरेंट वेंडर को शायद ना मैनेज कर पाए। बट अगर क्वेश्चन ये है कि क्या हम मल्टीपल एक्सेस पॉइंट मल्टीपल वेंडर के यूज कर सकते हैं, तो यस, हम यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होगा, है ना? सर डेफिनेटली मेरे हम पास यूज है ना, कर सकते हैं। क्या कि एक्चुअली मेरे पास से अरूबा के दो मॉडल के एक्सेस पॉइंट है सर। हम्म। अगर मैं एक्सेस पॉइंट AP15 को मैं रन करता हूँ, तो मेरा पूरे नेटवर्क में मतलब एक्सेस पॉइंट है ना, जो सभी ऑफलाइन ऑनलाइन हो जाते हैं। अगर मैं एक AP20 को यूज करता हूँ, तो मेरा प्रॉपर रन करता है। क्या नहीं करता? मतलब अगर मैं, मेरे पास दो मॉडल है सर, हाँ, एक एक्सेस मान पॉइंट। लिया एक्स मॉडल, एक वाई है। हाँ जी, अगर मैं एक्स को रन करता हूँ तो मेरा हाँ। प्रॉपर चलता है। और हाँ, अगर मैं वाई को भी कनेक्ट कर देता हूँ, तो नेट जो एक्सेस पॉइंट है वो ऑनलाइन ऑफलाइन शो करता है पोर्टल पे। तो आपको ये देखना होगा कि इन दोनों के बीच में कोई कन्फ्लिक्टेड कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है। हम मल्टीपल एक्सेस पॉइंट लगाएं या 10 लगा दें, अरूबा के लगाएं या फिर सिस्को के लगाएं या फिर किसी भी वेंडर के लगाएं, उससे मैटर थोड़ी ना करता है। हमें ये देखना होगा कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। राइट, एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट। कॉन्फ़िगरेशन तो सेम। हाँ, तो कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तभी प्रॉब्लम आती है। या डब्ल्यू लैन से कहीं कंट्रोल किया जाता होगा तो ग्रुप वाइज हो सकता हो कि कोई कॉन्फ़िगरेशन मिस कॉन्फ़िगरेशन हुआ हो, तो ये तो टेक्निकल कोई वो होगा, है ना, ग्लिच होगा। या कोई कॉन्फ़िगरेशन में मिस कॉन्फ़िगर हुआ होगा तो उस लेवल पर आप देखो। राइट। बट ओके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो कॉन्फ़िगरेशन में कोई इशू होगा। यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अगर हम हमें एक मल्टीपल, एक जी। एक मिनट, मल्टीपल अगर यूज नहीं कर सकते तो फिर लैन कंट्रोलर क्यों डब्ल्यू लैन कंट्रोलर क्यों बनाए गए? वो हजारों एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर करने के लिए बनाए गए एट अ टाइम, है ना, एक नेटवर्क में। हाँ, लास्ट मॉड्यूल है चैप्टर मॉड्यूल नंबर 6, मैंने 7 मैंने इसीलिए बनाया हुआ है पूरा। मैं उधर सिस्को WLC के साथ लाइट वेट एक्सेस पॉइंट और ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कराता हूँ, है ना। और मल्टीपल एक्सेस पॉइंट एट अ टाइम कंट्रोल किए जाते हैं। तो शायद वहाँ पर आपका और डाउट क्लियर हो जाए। ओके कौन मैनेज कर रहा है इन दोनों को? तो सर, हाँ, अरूबा का जो एक्सेस पॉइंट है वो कौन मैनेज कर रहा है? नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन होगा, है ना। दोनों एक साथ लाइव क्यों नहीं हो रहा है? एक अगर चल रहा है, दूसरे ऑन करने पर या वर्किंग में लेने पर दिक्कत आ रही है, तो मतलब कि आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन रीसेट करो, कुछ और तरीके से कॉन्फ़िगर करो। राइट। किसी लैन से तो नहीं, आप डब्ल्यू लैन से तो नहीं कंट्रोल कर रहे हो? फायरवॉल में मैंने अलग से उसको कनेक्शन भी दे के देख लिया सर, पोर्ट शील्ड करके देख लिया, फिर भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। इसको सिक्योरिटी के कोई फायरवॉल से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप इसको एक्सेस पॉइंट है तो इसको कॉन्फ़िगर करो, नेटवर्क के अकॉर्डिंग आईपी दो और ये काम करना स्टार्ट करेगा। इसको अपना एपीआई मतलब लॉगिन क्रेडेंशियल दो, इसको अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दो, वर्क करेगा। सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेम गेटवे अलग अलग। या ऐसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए। आप अलग अलग आईपी पर इनको रन करके अलग अलग क्रेडेंशियल देकर देखो, अलग अलग ऑथेंटिकेशन वर्क करेगा। तो टॉपिक पर आइए, आ जाओ सभी लोग टॉपिक पर। ऑफ टॉपिक भागोगे तो ऐसे नहीं समझ में आएगा ना। हम लोग बात कहाँ कर रहे हैं और एक्सेस पॉइंट चल रहा है। हम लोग राउटर पर थे और स्विच पर। और कोई क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड? सर ये जो भी ऑप्शन है ना राउटर पे, ये सब वो ऑप्शन फायरवॉल डिवाइस पे है क्या सर? किसमें? फायरवॉल डिवाइस पे सर, राउटर का ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन सब है ना, ये सब फायरवॉल डिवाइस पे हम कर सकते हैं क्या हाँ, सर? बहुत सारे सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है, जो राउटर पे भी वही है, फायरवॉल पर भी वही है, स्विच पर भी वही है ना।
और सर्वर डिवाइसेस जो होते हैं उस पर भी वही राउटिंग, वही कॉन्फ़िगरेशन, वो सारी चीज़ें होती हैं। बट हर एक का अपना यूज़ है, राइट। जी ठीक है सर। जैसे हम राउटर में नेट कर सकते हैं, वीपीएन कर सकते हैं, पॉलिसी लगा सकते हैं, वैसे फायरवॉल में कर सकते हैं, वैसे सर्वर में कर सकते हैं। बट इधर लेयर 3 राउटर स्विच पर नहीं कर सकते, है ना। जी ठीक है। तो बहुत सारी जगहों पर अब सर्वर सर्वर के अकॉर्डिंग अपना जो भी ट्रैफिक है मैनेज करेगा, फायरवॉल फायरवॉल लेवल की कॉन्फ़िगरेशन के लिए या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्लेस अलग होगा, इसका प्लेस अलग होगा, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारी जी होती ठीक हैं है। जो इसमें भी होती हैं, और वही कॉन्फ़िगरे मतलब वही टेक्नोलॉजी उसी लेवल पर इसके अंदर भी होता है, राइट। जैसे आप इसमें भी एसीएल कॉन्फ़िगर करते हो, इसमें भी एसीएल कॉन्फ़िगर करते हो, इसमें भी राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हो, इसमें भी राउटिंग करते हो। बट इसकी जो राउटिंग होती है वो हमारे राउटर के अकॉर्डिंग होती है, राइट। कि यहाँ का नेटवर्क क्या चल रहा है, गेटवे क्या चल रहा है, नेटवर्क आईडी क्या है, होस्ट क्या है, होस्ट आईपी क्या है, लैन इन्वायरमेंट की आईपी क्या है, उसके अकॉर्डिंग फायरवॉल में हम राउटिंग कराते हैं। राउटिंग हमें इनसाइड करना है, आउटसाइड करना है ना। डीएमजी जी के सर। लिए कराना है। तो वो नीड के अकॉर्डिंग, और वो जैसे मान लिया राउटिंग यहाँ यहाँ नहीं है, तो फिर हम कैसे इसकी राउटिंग को इसके अंदर फिल्टर करेंगे, है ना। समझ रहे हैं आप? जी ठीक है सर। तो बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं जो उसके अंदर भी वही है और उसके अंदर भी वही है, बट हर एक का अपना यूज है, इस्तेमाल है। ओके, चलो आगे बढ़े। यस सर। एक्सेस पॉइंट, ठीक है। तो मल्टीपल लाइक पॉइंट। अभी कोई एक्सेस पॉइंट पर बात कर रहा था। देखो, कोई भी XYZ आप कंपनी ले लो या फिर एक्सेस पॉइंट का एक डायग्राम मैं यहाँ पर सेटअप करता हूँ। मान लिया कि हमारे पास कुछ एक राउटर ले लिया, ये आईएसपी है। अब आईएसपी से आपने कनेक्शन लिया कोई अपने राउटर पर, ठीक है। और राउटर से आपने स्विच भी कनेक्ट कर सकते हो। स्विच के साथ आप मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम और ये सब एक कंपनी में सेटअप कर दिए, ठीक है। ये वायर्ड कनेक्शन हो गया। अब एक्सेस पॉइंट हम क्यों लगाते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सेस पॉइंट। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से देखें तो बहुत सारे ऐसे एक्सेस पॉइंट होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, एक्सेस पॉइंट ये भी हमारा है। मैंने इस एक्सेस पॉइंट को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, और मैं चाहूँ तो इसको राउटर से डायरेक्ट कनेक्ट कर दूं या चाहूँ तो अपने स्विच से कनेक्ट कर दूं, ठीक है। और जितनी भी हमारी वाईफाई या वायरलेस डिवाइसेस हैं, उन सभी वाईफाई डिवाइसेस को मैं एक्सेस पॉइंट से क्या कर सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ। देख सकते हो आप, राइट। ये राउटर ऑफ नहीं होगा कहीं से। अलाउ, ठीक है। ये देखो, सभी हमारे स्मार्टफोन क्या हो गए, हमारे एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो गए। अब मान लिया कि ये एक्सेस पॉइंट हमारे फ्लोर 1 के लिए था, अब कहीं दूर फ्लोर 2 भी है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एक और बिल्डिंग है कहीं दूर, और उस बिल्डिंग में मान लिया कि ये एक अलग बिल्डिंग है,
यहाँ एक अलग बिल्डिंग है, बट ये वाईफाई का रेंज यहाँ तक नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक नया एक्सेस पॉइंट यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं, और इस एक्सेस पॉइंट को मैं यहाँ के स्विच से कनेक्ट कर दूंगा लैन के थ्रू, क्योंकि लैन की लेंथ ज़्यादा होती है। और फिर यहाँ के जितने भी एक्सेस मतलब डिवाइसेस हैं, जितनी भी डिवाइसेस है, वो यहाँ के एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो जाएंगे। ये देखो, पास के एक्सेस पॉइंट से। ये इससे क्यों नहीं कनेक्ट हुआ, इससे क्यों हुआ, क्योंकि ये पास में है। तो एक्सेस पॉइंट का यूज किया जाता है अलग अलग लोकेशन पर नेटवर्क एक्सेस करने के लिए। एक्सेस पॉइंट का डेफिनेशन ही समझ लो कि इट इज एन एक्सेस पॉइंट। ओके, एक्सेस पॉइंट क्या है? एक एक्सेस पॉइंट नेटवर्क को एक्सटेंड करने के लिए, वायरलेस कनेक्टिविटी सेटअप करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राइट, लाइक कनेक्ट वायरलेस डिवाइसेस टू अ वायर्ड नेटवर्क। देखो, ये वायरलेसली क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है, बट ये वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट है। वायरलेसली कनेक्टिविटी दे रहा है, बट ये वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट होकर काम कर रहा है। क्लियर है? सो प्रोवाइड वाईफाई कनेक्टिविटी इन स्पेसिफिक एरिया। राइट, क्लियर है? यस सर। सर यस। इसमें ट्रांजिशन कैसे होता है, जैसे एक एरिया हमने छोड़ के गए दूसरी एरिया में? जैसे, जैसे क्या होता है, हम एक एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड हैं, हाँ हाँ, हम अब वैसे ही थोड़ी दूर चले जाते हैं तो दूसरा एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब वैसे ट्रांजिशन कैसे होता है इसमें? ये ट्रांजिशन होता है डब्लू लैन से, है ना। वायरलेस लैन कंट्रोलर होते हैं। तो जितने भी ये एक्सेस पॉइंट होते हैं, इनको किसी एक लैन कंट्रोलर से, है ना, डब्लू लैन कंट्रोलर बोला जाता है, वायरलेस लैन कंट्रोलर। तो इसके थ्रू इन सभी एक्सेस पॉइंट को एक ग्रुप के अंदर रख दिया जाता है, ग्रुप 1, जिसके अंदर AP0, AP1। ओके। तो अगर आप यहाँ के क्रेडेंशियल से यहाँ काम कर रहे हो तो यहाँ एक्सेस रहोगे। आपने अपना लोकेशन चेंज किया, दूसरे बिल्डिंग में गए, तो यहाँ के वाईफाई से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाओगे, है ना। यस सर। ये ऑटोमेटिक सीमलेस ट्रांजिशन हो सकता है, मे बी क्रेडेंशियल भी देना पड़े, मे बी ना देना पड़े। ये कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करता है कि आपने डब्लू लैन को कैसे सेटअप किया है। राइट, क्लियर है? यस सर। करके देखेंगे हम लोग, डोंट वरी। बट एक्सेस पॉइंट क्या करता है बेसिकली, एक्सटेंड नेटवर्क कवरेज इन होम ऑफिस, होम नेटवर्क और ऑफिस नेटवर्क। राइट, एक्सटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। यस सर। वायरलेसली आप, जैसे मान लिया कि हमारा ऑफिस है 4 फ्लोर में, तो फ्लोर 1 पर अगर हमारा वाईफाई राउटर लगा है, तो क्या वो चौथे फ्लोर पर भी कनेक्टिविटी देगा? नहीं देगा ना। 10 मीटर का एरिया होता है, 30 फीट, 30 to 40 फीट हो सकता हो। बहुत एडवांस राउटर खरीद लिया तो शायद राउटर वो मतलब कि लार्ज एरिया कंट्रोल करता हो, कनेक्ट करता हो। बट बाय डिफॉल्ट देर इज 10 मीटर्स ऑफ रेंज। ओके, और यही राउटर आपको मिलता भी है। आप देखो, आपके घरों में जियो का फाइबर, एयरटेल का फाइबर, वोडाफोन का, BSNL का लगा होगा, बट क्या आप अपने फाइबर से 500 मीटर दूर के कनेक्शन सेटअप कर पाते हो? नहीं ना, लिमिटेड एरिया में होता है। इवन देन आप पहले फ्लोर से दूसरे पर चले जाते हो तब भी नेटवर्क स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रॉपर रेंज नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं, एक और एक्सेस पॉइंट खरीद लें और अपने इस राउटर से कनेक्ट कर लें या स्विच से कनेक्ट कर लें केबल के थ्रू, क्योंकि केबल की लेंथ 100 मीटर तक होती है ना। यस सर। फाइबर केबल है तो ये एक शहर से दूसरे शहर में लेकर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 80 किलोमीटर दूर नेटवर्क है, दूसरा मतलब आपका दूसरा घर है, यहीं से लेकर चले जाओ। फाइबर टेक्नोलॉजी, फाइबर का कोई रेंज नहीं है। फाइबर लार्ज कैंपस या लार्ज नेटवर्क, सिटी टू सिटी भी आप अपना पर्सनल कम्युनिकेशन करा सकते हो। बट इतना खर्चा कौन करता है? कंपनी वाले करते हैं, है ना, उसी का यस सर। पैसा लेते हैं। ये सारी चीजें, एंड बेसिकली वी कैन कॉन्फ़िगर मल्टीपल एक्सेस पॉइंट ओवर अ नेटवर्क। तो देखो, एक एक्सेस पॉइंट यहाँ है, एक एक्सेस पॉइंट यहाँ है। अब मान लिया कि इस एक्सेस पॉइंट का भी नेम मैंने ए कर दिया और इसका भी ए कर दिया, और दोनों को एक साथ लाइव करेंगे तो दोनों काम करना। तो किसी ने अभी ऐसा ही कोई क्वेश्चन किया होगा, जब कन्फ्लिक्शन होगा तभी ऐसा होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो एक बार हमें पूरी कॉन्फ़िगरेशन को रीचेक करना होगा।
ओके सर। यूनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रीजंस देखो, टेक्निकल जब ट्रबल शूटिंग की कभी हम लोग बात करेंगे तो मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। जैसे कभी कभी ये होता है कि इस डिवाइस ने इसके एक्सेस पॉइंट ABC से कनेक्टिविटी कर लिया। मे बी आज इसका यूजर नेम ABC था और पासवर्ड 123। इसने इसको सेव कर लिया नोन नेटवर्क में। उसके बाद 2-4 महीने बाद क्या हुआ कि आपने इसका रीसेट कर दिया और ABC से कर दिया XYZ और कुछ ऐसा कर दिया। और सारी डिवाइसेस ये जो जितनी भी हमारी हैं ये सभी इसके साथ अभी नोन नेटवर्क में है। आपने इस पर इनेबल किया ABC और इस पासवर्ड कुछ भी कर दिया, तो ये जो नेटवर्क है ये कन्फ्लिक्ट करेगा क्योंकि प्रीवियस डेटाबेस इसका है। तो या तो हम रीसेट कर लें, है ना। यस सर। ये भी रीजंस आते हैं, ये भी कनेक्टिविटी में इशू आता है वायरलेसली कि नोन नेटवर्क्स। देखो आप अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट इनेबल करो, हॉटस्पॉट का जो भी नेम है वो ABC करो, किसी डिवाइस को कनेक्ट कर दो। हॉटस्पॉट के मतलब कि अपने फोन को या सॉरी दूसरा कोई मोबाइल पर जाओ और उस मोबाइल पर मतलब कि भी हॉटस्पॉट इनेबल करो, उसका भी नेम ABC कर दो और पासवर्ड कुछ कर दो या पासवर्ड सेम कर दो। तो जब आप कनेक्ट हम्म। करोगे ना तो ये वैलिडेट नहीं करेगा क्योंकि इसका बीकन इसके बीकन में डिफरेंट आएगा, राइट। इसका BSSID और इसका BSSID दोनों में डिफरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सेम क्रेडेंशियल पर सेम सारी चीजों पर ये ऑफलाइन दिखाने लगेगा, है ना। ऑथेंटिकेशन एरर दिखाने लगेगा ऐसा। तो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे लॉग या ये कॉन्फ़िगरेशन के मिस्टेक्स हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारा वो नहीं है। तो कभी भी हम पुराना अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो हम उसको भी एक बार क्रॉस रीचेक करके उसको रेक्टिफाई करें और उसको रिमूव कर दें। और अपनी डिवाइसेस से भी ओल्ड जितने भी सेव्ड नेटवर्क हैं उनकी डिटेल्स निकालें और उसको रिमूव कर दें। क्लियर हो रहा है, ट्रबल शूटिंग की बात मैं कर रहा हूँ। ओके। बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस आपने देखा होगा जो PoE डिवाइसेस होते हैं, पावर ओवर इथरनेट, है ना। और पावर ओवर इथरनेट क्या होता है कि ये भी हमारा एक स्विच होता है जो IP कैमरा कैमरा वगैरह का जो काम किए होंगे उनको पता होगा। जो भी IP कैमरे होते हैं उनके सेटअप के लिए कौन सा स्विच इस्तेमाल किया जाता है। PoE डिवाइस। PoE डिवाइस बेसिकली हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है जो केबल के ही इस्तेमाल से डेटा और पावर दोनों को सप्लाई करता है। समझना हमारी बात को, मैंने क्या बोला कि PoE डिवाइस यानी कि PoE स्विच होता है। अब इसमें देखो अलग से हमें पावर सप्लाई देने की जरूरत नहीं है। इसमें हमारा IP फोन हो गया, हमारा कैमरा हो गया, हमारा एक्सेस पॉइंट हो गया, हमारा और कैमरा हो गया, ये सभी इसी लैन केबल से, जो भी लैन केबल करेक्ट। से कनेक्ट होंगे वो इसी से डेटा भी इनको जाएगा और इसी से पावर भी। पावर भी। इसमें जो भी कनेक्टिविटी दी जाएगी उसी मतलब ईथरनेट केबल से ही पावर ओवर ईथरनेट। मतलब क्या है कि पावर ओवर ईथरनेट में PoE आपका ईथरनेट केबल ही पावर भी सब मतलब कि सप्लाई करेगा और डेटा भी सप्लाई करेगा। डेटा। ठीक है। लेकिन जो 8 वायर होते हैं ना हमारे ईथरनेट केबल में, उनके अंदर 1, 2, 3 एंड 6 नंबर के वायर को छोड़कर जो अदर वायर्स होते हैं वो ऐसा काम करते हैं, राइट। ईथरनेट स्टैंडर्ड जब हम लोग पढ़ेंगे CCNA के नेक्स्ट मतलब इसके नेक्स्ट मॉड्यूल में CCNA चैप्टर 1 के साथ, तो यहाँ पर मैं आपको इन वायर के एक एक फंक्शन को बताऊंगा कि वायर 1, 2, 3, 6 किसके लिए है, 4, 5, 7, 8 किसके लिए है, राइट। तो 4, 5, 7, 8 हमारा PoE को मैनेज करता है। इज दैट क्लियर। पावर ओवर इथरनेट कैमरा वगैरह में वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई यूज कर रहा है कभी कैमरा वगैरह का सेटअप PoE के यस साथ। सर, मैं क्या। हाँ तो जी बताओ ना यस सर। सबको
क्या उस ऐसे स्विचेस में हमें या जो भी कैमरा वगैरह के लिए होते हैं, क्या अलग से पावर सप्लाई देना होता है? नहीं सर। उसी में हो जाता है ना? यस सर। तो कौन कौन से वायर, चलो बाद में कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर कुछ ठीक। बताना चाहो तो बता सकते हो सबको। नहीं तो मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा इथरनेट स्टैंडर्ड पढ़ाते हुए। ये वॉइप फोन यूज करते हैं सर ऑफिस में, हाँ। पीओई। वॉइस ओवर इथरनेट। इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। हाँ, वीओआईपी वगैरह के लिए। तो ये हमारा आईपी फोन यही है ना? राइट। वाई। हाँ जी सर। ओके। तो ये भी डिवाइसेस हमारे पास होते हैं। ऐसे ही फायरवॉल होता है, ब्रिज भी होता है। ब्रिज का काम क्या होता है? दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ना। कनेक्ट कर। जोड़ना। तो समझ लो कि जो लैन केबल का इस्तेमाल करके जो कनेक्ट करे वो ब्रिज है। और जो बिना केबल के, जैसे एक्सेस पॉइंट भी हमारा एक ब्रिज की तरह काम करता है, राइट? यस सर। एक्सेस पॉइंट भी हमारा ब्रिज की ही तरह काम कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो आपको डेडिकेटेड ब्रिज है। और ब्रिज पर क्या होता है, बेसिकली अलग अलग पोर्ट देखो बना हुआ है, ठीक है? अब अगर आपके नेटवर्क में मतलब आपके कंपनी में दो नेटवर्क सेगमेंट चल रहे हैं, मतलब दो फ्लोर का ऑफिस है। मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर कुछ 200 कंप्यूटर लगे हैं, इधर 200 कंप्यूटर लगे हैं, सारा कुछ काम चल रहा है। तो एक पोर्ट हम यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दें और एक यहाँ से यहाँ। ठीक है। ब्रिज पर दो पोर्ट होगा, दो लैन सेगमेंट को आपस में कनेक्ट करने के लिए, एक ये एक ये। तो एक से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, एक से मैंने इधर वाले को। तो यहाँ की ट्रैफिक यहाँ और यहाँ की ट्रैफिक यहाँ कम्युनिकेट कर सकती है। तो ब्रिज बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो दो डिफरेंट नेटवर्क से, मतलब सॉरी, दो नेटवर्क सेगमेंट को कनेक्ट करने का काम करता है। क्लियर है? हम्म। वायर्ड के थ्रू हम इसकी कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ऐसी फायरवॉल डिवाइस होता है, राइट? नेटवर्क में या नेटवर्किंग करने के लिए फायरवॉल। अब फायरवॉल आप लोग एज अ बिगनर नहीं पता होगा, बट फायरवॉल हार्डवेयर भी होता है, फायरवॉल डिवाइस होता है। जैसे मैं यहाँ पर सिस्को एएस से फायरवॉल को दिखाऊं तो ये देखो कुछ फायरवॉल हैं। ठीक है, ऐसे सोफोस है, पोलो ऑल्टो है, अलग अलग फायरवॉल है। तो इन फायरवॉल के थ्रू आप अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी को क्या करते हो, इनहेंस करते हो। आपको नेटवर्क को फिल्टर करना है, कौन सी आईपी कम्युनिकेट करे, कौन सा ना करे, कौन सा डेटा सेंड हो, कौन सा ना हो, कौन से आईपी को अलाउ करना है, कौन सी आईपी को डिनाई करना है, कौन सी वेबसाइट को अलाउ करना है, कौन सी वेबसाइट को ब्लॉक करना है। अगर फेसबुक अलाउ करना है तो अलाउ करो, बट फेसबुक चैट को ब्लॉक कर दो। एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल भी कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो आप? इनसाइड की ट्रैफिक आउटसाइड जाए, आउटसाइड की ट्रैफिक इनसाइड ना आए, ये सारे कंट्रोल आप इस फायरवॉल के थ्रू क्या कर सकते हो, कर सकते हो, राइट? मैनेज कर। यस। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल होते हैं। सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है। आप सिंपल लिख सकते हो कंट्रोल पैनल अपने रन प्रॉम्प्ट में। कंट्रोल पैनल ओपन होगा, सिस्टम एंड सिक्योरिटी डिफेंडर फायरवॉल, और यहाँ से आप अपनी फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। फायरवॉल में जो भी अलाउ करना है अलाउ करो, डिनाई करना है डिनाई करो। ठीक है। तो ये जैसे सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल है। कोई खेल का आता है, ये भी तो फायरवॉल ही है सर। हाँ, उनके अपने एप्लीकेशन लेवल के कंट्रोल होते हैं, हम्म। है ना? बट माइक्रोसॉफ्ट हमें लाइक हमारे हर एक अपने सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एडवांस फायरवॉल का सिक्योरिटी सिस्टम दे रहा है ना, हम्म। डिफेंडर के साथ। तो ये काफ़ी सिक्योर है। आज तक मुझे अलग से कोई एंटीवायरस ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैं
इस सिस्टम को जितना यूज करता हूँ शायद कोई यूज करता हो पढ़ाने के लिए, कभी टेस्टिंग के लिए कुछ। अभी मैंने पेनेट्रेशन टेस्टिंग के लिए लाइव अटैक का एक बैच लिया है, जिसमें 5-7 घंटे का, और बहुत एडवांस लेवल पर उसमें अलग अलग तरीके के अटैक सिस्टम और ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। बट हमें पता होता है कि किस तरीके के एक्सेस करने से क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं उसको अटैक करने से पहले। तो शायद उसकी वजह से सेफ है। नहीं तो फिर इंटरनेट पर आप आ, उतना चैलेंज करके नहीं सेफ रह सकते, है ना। ये सारी चीज़ें फायरवॉल लगाना ही लगाना पड़ता है। बट हमारे इस सिस्टम पर कोई लाइक इतना इंपॉर्टेंट डेटा है नहीं, है ना। मुझे नोट्स भी नहीं पीडीएफ की तरह रखना पड़ता है, मैं नोट्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करता। इसी में मैं बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर लेता हूँ, इसी पे पढ़ा देता हूँ। कभी किसी भी उस पे नोटपैड हमारे पास बस होना चाहिए। तो यही सब डिवाइसेस हैं आपके। फायरवॉल है, इथरनेट है, सर्वर है, एनआईसी कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, एक और डिवाइस मैं यहाँ पर ऐड करके दिखा दूँ, एनआईसी कार्ड। इसी पर हमारा क्या होता है, आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है। ठीक है, यही कार्ड हमारे लैपटॉप, मोबाइल, इसी तरीके के मतलब एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगे होते हैं। ये लैन कार्ड है, और इसमें वाईफाई कार्ड भी होगा जिसमें एंटीना लगा होगा। ये ट्रांसीवर एंड रिसीवर, ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रांसीवर रिसीवर होता है। ठीक है, सिग्नल को हाँ सेंड समझ और गया। रिसीव करने के लिए। ये हमारा वायर्ड कनेक्टिविटी के लिए होता है, लैन केबल के थ्रू। इसी पर हमारा मैक एड्रेस होता है, और इसी पर हमारा आईपी एड्रेस आईपी असाइन एड्रेस। किया जाता है। बिना इसके कंप्यूटर या किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस पर कम्युनिकेशन करना इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है। बिना इसके आप कम्युनिकेट, डेटा सेंड और रिसीव कुछ ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर है सभी को। यस। तो ये छोटी छोटी डिवाइसेस हैं। केबल के बारे में मैं पूरा पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें, डोंट वरी। अगला हमारा मीडिया स्टार्ट होगा, केबल मीडिया।